introductory session about the 8085 microprocessor. I have uploaded my video as well as uh, that slides also. So any doubt in that case? Yes. Okay. So can we go ahead if there is no doubt? If you don't want to ask on the Google Meet, you can ask on the personal WhatsApp number also. So now we are starting our lecture. We have seen that in the case of 8085 microprocessor, there are buses. Okay, and I told you that this is not a single signal will be flow on the buses. The buses has a tendency that it various type of the signals will be flow on a group of the wire. Then it is called as a buses. Okay. So now come to the point on here. There are three type of the buses are available into the 8085 microprocessor. The first type of bus is called the address bus. Second type of bus is called as a data bus, and third type bus is called as a control bus. Then if we're talking about in the terms of the number, okay, the numbers that is available, meaning of the number is that वो कितनी होती है. So number का मतलब यह है कि यहाँ पर वो कितने buses उसमें available है. Okay, because as we go in the development history of that microprocessor, Intel had what the Intel has, or we are now apart from the Intel, we can talk about the other companies also. So what they have done is that they have always increases the size of the address bus and data bus and so on. Okay, so according to it, we can say they have tried to increase the functionality of any microprocessor. So we have seen that in the case of 8085 microprocessor, the number of address buses are 16, while the number of asset buses are 8 bus data bus is available, and control bus is not fixed in the number. Okay, it is not fixed in the number. So what is the name that is given into the microprocessor? So they have given the name just like A15 to A0. Okay, so there are total 16 buses. They have given the nomenclature just like this one, A0 to A15. Apart from this, there is a D7 to D0, है ना. टोटल 8 बसेस हो गई, और ये कोई फिक्स नहीं है. सो अपन बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे क्या होता है. ठीक है, बट व्हाट वी हैव सीन, वी कैन डू वन मोर थिंग ऑन हियर इज दैट कि एक्चुअली यस A15 to A0 क्या पिन नंबर है? नहीं, इसका नंबर है. जैसे मान लो मैंने कहा कि ये जो मेरी बसेज हैं, जैसे मान लो ये मैंने बसेज बना 3, 4, 5, 6, 7 and 8 for example, and then 9, 12, 10, 11, 12, 13. So we can say if this is my A0 line, and up to this is going till A15. Okay, so each line will be given a nomenclature, and for example, this is my LSB line, this is my LSB address bus, so I will give the name as the A0, and this is my A15, so this is my NSB address bus. Okay, clear? Is this clear? Okay, so one more purpose for that one is that I will tell you that in the case of 8085 microprocessor, for example, what is the purpose? First we will see कि ये बनाया क्यों. So purpose of address bus, you have seen that the address bus will try to identify. Okay, will try to identify. So the identification work is actually allotted to the address bus. Okay, so किसको आइडेंटिफाई करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो किसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है. So I told you that whenever the microprocessor want to communicate with any type of the devices, for example, this is my microprocessor. So the possibility of the communication with any type of devices is it may be either memory or any input device
or output device or something. Okay, sometimes some peripherals also. Okay, so each and every devices will be having the address. Okay, and this address is actually allocated to that device by the designer. है ना, जो भी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, मतलब जो भी सिस्टम डिजाइनर होगा वो उसको एक एड्रेस अलॉकेट करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे हम सबका एक नाम है, उसी तरह से सभी का एक एड्रेस होगा, उससे वो एड्रेस को आइडेंटिफाई होगा, माइक्रोप्रोसेसर उस एड्रेस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेगा. ओके, सो दिस एड्रेस मे बी समटाइम्स 16 बिट और मे बी और समटाइम्स 8 बिट. सो आई विल टेल यू वो कब 8 बिट होगा और कब 16 बिट होगा. नाउ important task is that if suppose there are three devices, okay, for example the address of this memory register, I am saying the address of this memory register is somewhat 3A00H, and for example iska bhi koi address hai and the address of that one is we can take FC08H like that one, and this address is for example is in 7827. Okay, like this. So all these are the addresses. Now how the microprocessor will try to identify these addresses? Okay, so in the at that time I told you that first of all the microprocessor will try to load the addresses. For example, if the microprocessor is want to communicate with this 3A00 address, so microprocessor will put, I will draw here the address buses just like this: A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, A7. Okay, I'm trying remaining here: A6, A5, A4, A3, A2, A1, and A0. Okay, so this is in the hexadecimal. So microprocessor, how the microprocessor will load that number? So for this, there is a special type of devices available. It's called as a program counter, which will load the some content on the memory. But this is the address. So program counter will not be having any significance on here. So first, we will convert this number into binary and we will load each and every bit. So this is 3A. So I will divide this 3A into the two parts. The first part is called as a MSB, another part is called as a LSB. So MSB will be travel on the line A15 to A8, and this will be travel on a line A7 to A. Okay, so we will load each and everything. For example, this is 3, so number will be 0011. So this will represent the 3, and this is 1010. So this represent the A. We can instead of this we can draw write down here. This is A7. So this is 00. So this is write down 000 and 000. So like this address. For example, these are the buses. So I am connecting these buses here. Okay, this is the buses. So here the line A0 to A15 will be loaded with the address. That address is 3A00. So what microprocessor is trying to doing on here is that microprocessor is trying to identify which register, मतलब किस रजिस्टर से मेरे को डाटा लेना है या किस रजिस्टर से डाटा लेना है. एंड वी हैव सीन दैट ईच एंड एवरी मेमोरी इज कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट इज हैविंग द रजिस्टर्स. ओके, सो आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस कि रजिस्टर्स होते क्या हैं और वो मेमोरी के अंदर कैसे अरेंज किए जाते हैं. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट remember this identification task is unidirectional. Okay, unidirectional, what do you mean by unidirectional? Means this is from NUPI to that device, not from reverse. So reverse is not possible. Device cannot identify microprocessor. Only the microprocessor will try to identify the device. That's why the property of this address buses is just like is that they are always the unidirectional. Is it clear? Any doubt in the case? Is it clear? Okay, if this is not clear, we will give one more example. So the purpose is that the address buses is like that one, and one I will tell you one more point on here is that कि मान लो इसके ऊपर कोई डाटा होता, तो वो डाटा जैसे पिछली बार मैंने फिगर बना के आपको बताया था, तो अगर वो डाटा होता तो आई विल ड्रा इट
here. So for example, if this is externally connected memory, we will take one more example. This is externally connected memory. So you can say, for example, this is my microprocessor, this is my microprocessor, and this is my memory. So in this memory, there are a lot of registers are actually available. So we can take the sample that we have taken this register, and this register having the address of PA00H. So this is the address of that. So what the microprocessor has done, microprocessor has been loaded this address on the lines A0 to A15, and finally that decoder will try to say कि यहाँ का आपका कौन सा सर्किट है. For example, if I will just put on here. So this address CA00 will be travel on the lines like in this line. Is it clear? Okay. So for example, if I'm saying this memory having some data, and this data is BD. So BDH, I'm writing H. So H is representing the hexadecimal number. Okay. So this BDH is nothing. I'm writing BDH is the data. Okay. So if suppose the task is that मैंने आपसे कहा कि चलो इस 3800 एड्रेस पे जाओ और ये डाटा मेरे पास लेके आओ. मतलब माइक्रोप्रोसेसर ने ऐसा एक आदेश जारी किया कि ये 3800 पे जो भी इस मेमोरी पे जो भी डाटा है बीडी वो मेरे को लेके आओ, है ना, मेरे पास लेके आओ. तो अब लेके आओ ये कैसा, तो अब मेरे को एक्चुअली करना क्या है. तो माइक्रोप्रोसेसर क्या चाहता है, माइक्रोप्रोसेसर चाहता है कि ये डाटा को मैं अपने पास रखूं बीडी को. तो इन द केस microprocessor will release the some signal, okay, and that signal, remember, whenever microprocessor wants some data, I am writing, so for example, if the communication is just like this one, if this is memory or any type of IO device or anything, if the microprocessor want the data in this direction, I am saying the data in this direction means the microprocessor want कि ये data मेरे पास आए. So in this case, the communication is just like this one, means the microprocessor want to read. Microprocessor want to read. If the reverse case is there, for example, if the microprocessor, and suppose this is some memory, and some data is already available, for example, this 80H is available. If the microprocessor want that I should write down this data on the memory, then in the case the type of the this is data means the microprocessor want to write. So can you please tell me that in the case, in this figure case, so what will happen on here is that microprocessor want to read that data. So this read signal, I'm saying this read bar signal will be this read bar is called as a control signal. So control signal, there are various types of control signals, but the two control signals are very important. The first type of control signal is called as a read bar, and writing on here, read bar and the write. Okay, so this read and write will finally decide that what will be the direction of the data on the data bus. Okay, so immediately, suppose if I connected the data bus with the microprocessor, so the number of data buses that is available in 85 microprocessor is from D0 to D7. So I connected my line D0 to D7 here and D0 to D7, है ना. तो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होगा, तो कम्युनिकेशन कैसे, इसका स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप आपका एड्रेस जाएगा. सेकेंड, आपका कंट्रोल सिग्नल जब तक रिलीज नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रीड बार है यहाँ पर, तो कंट्रोल सिग्नल जब तक आपका रिलीज नहीं होगा तब तक डाटा, जैसे मान लो बीडी है तो बीडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल ही नहीं करेगा. तो जैसे इसको कंट्रोल सिग्नल मिला तो ये बीडी डाटा अब माइक्रोप्रोसेसर के पास आ जाएगा. तो लाइक इन दिस मैनर द कम्युनिकेशन विल बी हैपन. इज इट क्लियर? ओके, सो वी हैव सीन. यस सर, ये वाला पार्ट फिर से बता दीजिए ना एक बार, जो आरडी बार वाला था अपना, रीड बार वाला. हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ.
अपन एक नई स्लाइड को लेके उसको अपन देखते हैं ना, आरडी बार वाले को, फिर मैं वापस से बैक स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल सिग्नल। Okay, so control signals actually control the some functionality inside the microprocessor, and they especially control the type of the operation that is going on inside the microprocessor. So basically, in the microprocessor, there are four type of the operation. First type of operation is called memory read, memory write, memory write, and this is called IO read, input output read, and another one is called as a IO. Okay, so this memory means some is going on, means memory plus you are trying to read something, memory plus reads, this type of operation is going on. In the case of this something like memory के ऊपर मेरे को कुछ write करना है, ठीक है, इस केस में IO read है, तो आप सिर्फ अगर आप देखें तो आपके पास अगर मैंने दो डिवाइसेस की दी है, तो एक इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ऑब्वियसली आप आउटपुट को रीड नहीं कर पाते, आप हमेशा जो रीड कर पाते हो वो किसी इनपुट को रीड करते हो, दिस इज कॉल्ड इनपुट रीड एंड फाइनली दिस इज कॉल्ड द आउटपुट, बट कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज IO रीड एंड IO राइट। ओके, हमेशा आउटपुट डिवाइस से आप राइट करते हैं, ये हमेशा आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भले मैं माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस करूं या माइक्रो कंट्रोलर डिस्कस करूं, हमेशा ये फंडा यूज होता है कि आपकी जो मेमोरी है उसके ऊपर आप रीडिंग और राइटिंग दोनों करवा सकते हो, डिपेंडिंग करता है कि टाइप ऑफ मेमोरी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वो रैम है तो रैम के ऊपर आप रीडिंग और राइटिंग दोनों करवा सकते हैं, अगर वो आपकी रोम है तो रोम के ऊपर सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे आर कॉल्ड एज ए IO रीड, IO read. Okay, so they are called memory read and this is called memory. Okay, so now what will happen in the case of this one, the microprocessor is having two type of the control signal that is called as a read bar and write bar. Why this bar means this bar is showing that this signal having the status or we can say the actuation level of active low, मतलब जब ये सिग्नल एक्टिव लो होगा तभी ये काम करेगा। Similarly, the right bar is like that one. It will not work on an active high. So the tendency, if the bar is present on any signal, then it is called कि वो एक्टिव लो होगा, मतलब जब इस तरह की पल्स आप उसको प्रोवाइड करोगे या इस तरह की पल्स जनरेट करेगा तभी वहां पे होगा, मतलब इस वाले पोर्शन में आपका ऑपरेशन होगा, अदरवाइज जब आपका ये हाई होगा तो वो ऑपरेशन नहीं होगा। Clear? Is it clear? So we are again coming to this figure. Now see this. Somebody has asked the question is that what is the meaning of this read bar? So this read bar ultimately मेरा इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया थ्रू द एड्रेस बस। अब ये डाटा तब तक इसके ऊपर ट्रेवल नहीं करता है, मतलब ये जो डाटा है वो डाटा मेरा मेमोरी पे है और ये डाटा मेरे को कहाँ पे लेके आना है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब इसको रीड करना चाहता है, तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड द रीड बार सिग्नल टू द मेमोरी। इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग दिस रीड बार सिग्नल, this memory will release this BD from its register and finally it will go to the direction of microprocessor and it will be received by the microprocessor in any register or we can say anything that is according to the instruction decided by the programmer. Okay, so this point is clear. जिसने क्वेश्चन पूछा था रीड बार का, is it clear? Actually one more thing on here is that आपने देखा होगा कि किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप यहाँ पर तो प्लेन रीड बार की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो सिग्नल होना चाहिए वो एक्चुअली आप यहाँ चार तरह के सिग्नल बता रहे हो, तो ये क्या चक्कर है, ये कैसे होता है? तो आई विल टेल यू दैट इन द केस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर there is a one type of status signal and this status signal is like this one. This is, or we can say in a different manner we can write down the same thing. So IO oblique N bar. So on a single line
Actually, what will happen that I'm going to discuss this one also. That if I talk about 8085 microprocessor, it is 40 pin DIP package, and this DIP stands for Dual Inline Package. तो Dual Inline का मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं आईसी बना रहा हूँ, ये मेरा नोच है, तो जितना नंबर ऑफ पिन्स मेरी यहाँ पर अवेलेबल है, जितनी नंबर ऑफ पिन्स मेरी यहाँ पर अवेलेबल है, सेम नंबर ऑफ पिन्स दूसरी साइड पे अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 40 है, तो 20 पिन्स विल बी अवेलेबल हियर and 20 pins will be available here. This is called dual inline packaging. Okay, so we can say the number of pins are fixed. Means as it whenever we are designing any type of the IC, we have seen in a VLSI technology, the number of pins for any package is fixed. Either you will go 40 or 48 or something like 60 pin IC like that one. So in this case, what the Intel has done, Intel has designed this IC as a 40 pin IC, but the number of signals are more than 40. So what they have done, on a single pin, they have assigned a double function. So this is called the double function signal. So what will happen, this signal is composed of two different things. First thing is IO, another is memory. मतलब पिन मेरी एक ही, लेकिन उसका सिग्नल का लेवल अलग अलग है. तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, मतलब इस पिन के ऊपर अगर मैं हाई दे रहा हूँ, मतलब एक्टिव हाई दे रहा हूँ, आप वहां देखिए, अगर मैं एक्टिव हाई दे रहा हूँ, मतलब कौन फंक्शन करेगा यहाँ पे, हु विल फंक्शन, आईओ विल फंक्शन. Okay, if I am giving active low, then who will function, memory will function. Now I am giving you the one task is that, for example, if I am having the signals just like this one, so please write down this question and just solve it right now. If I am having these three signals from the microprocessor, for example, this is the three signals from the microprocessor, IO oblique, IO oblique M bar, read bar, and this is my write bar. You have to do some auxiliary with the help of the some gates, and then finally you have to generate this signal, memory read bar, memory write bar, IO read bar, and IO write bar. Please try to solve this question. क्या होगा, मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक ब्लैक बॉक्स है, ऐसा डॉट 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 में बॉक्स बनाऊं, तो ये सिग्नल मेरे को जनरेट करने हैं, तीनों है ना, चारों जनरेट करने हैं. तो मैं क्या इस ब्लैक बॉक्स में किस तरह का एंड गेट, जो भी सर्किट्स आपको डिजाइन करना है, आपके पास जो भी गेट है उससे आप इसको डिजाइन करिए, और मेरे को फाइनली ये बताइए कि ये सिग्नल्स मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ, ये चारों, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के मन में डाउट है, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला, आई विल गिव द हिंट, and the hint is just like is that I want to generate memory read. So in this case, I will take help of this signal as well as of this signal, and finally, due to some combination of the gate circuitry, I will generate this signal. But remember, the status of this signal should be like this one. When this memory read bar will be generated, first I am giving you the hint. I am not solving this question right now. कि जब memory रीड बार अपन जनरेट कर रहे हैं, है ना, तो मेमोरी रीड बार सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये एक तरह का एक्टिव लो सिग्नल है. अब ये एक्चुअली जनरेट कर रहा है एम बार प्लस, सॉरी नॉट प्लस, एम डॉट डॉट मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज द रीड बार. इतनी हिंट दे सकता हूँ कि मतलब दोनों का स्टेटस, मतलब अगर ये दोनों जब एक्टिव लो है, तब ये एक्टिव लो जनरेट होगा. तो आपको डिजाइन करना है और मुझे बताना है कि सर ये सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं. तो मेरे को चारों सिग्नल चाहिए. देखें किसी की कॉपी, कोई कैमरा ऑन करके बता सकता है कि क्या है. चलिए बताइए आप लोग की कॉपी, कोई भी बताओ.
दोज हु आर लीविंग द मीटिंग, उनके नाम एक फाइल में अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। तो कौन कितनी बजे मीटिंग लेफ्ट करके गया वो भी पता चल जाता है। तो आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस अगर फॉलो कर रहे हैं कि सिर्फ क्लास में अपन बैठ लो सुन लो, आई एम सेइंग दैट प्लीज टेक ए फीडबैक फ्रॉम योर सीनियर्स। द क्वेश्चन पेपर इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। यू कैन टेक द हिस्ट्री and you can see the previous year's question paper. Each and every question will be based on some logic. तो अभी वो लॉजिक डेवलप नहीं हुए तो डेफिनेटली यू विल बी सफर, ओके ओके। तो किसी ने सॉल्व किया, कोई कॉपी दिखाएगा? कॉपी दिखाएगा? इनको एक और हिंट दे दीजिए सर कि ये गेट लॉजिक से बनेगा। हाँ सर, वो मैंने बताया था इनको कि गेट के कोई भी गेट की हेल्प से आप बनाओ। आई एम सॉरी, आई एम लेट बिट इन जॉइनिंग। नो प्रॉब्लम। नहीं किया किसी ने सॉल्व? सर चारों का एक साथ ही बनाना है कि मतलब चार अलग अलग सिग्नल का अलग अलग है? नहीं, चारों का एक साथ ही बनाना है। तो चारों के लिए आप अलग अलग 4 गेट यूज कर सकते हो। 4 गेट यूज कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉजिक वो अगली अलग प्रॉब्लम है कि कितने मिनिमम सर्किट में आप कर सकते हैं। जनरली मिनिमम सर्किट में करने से जो है वो एक तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या सर्किट पे जो है वो डिवाइस काउंट कम होता है और दूसरा जो है वो उसकी पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इसलिए वो तो ऑप्टिमाइज कर ही सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अभी इस लॉजिक को समझना कि हमको 3 सिग्नल दिए हैं और उससे जो है वो ये 4 सिग्नल्स जनरेट करते हैं, क्योंकि ये 3 सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर से आएंगे और उससे आपको एक्सटर्नल लॉजिक यूज करके ये सिग्नल्स जो है वो दूसरी बाहर की डिवाइसेस, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने पड़ेंगे तो कंट्रोल दें। मनीष, आवाज आ रही है ना? ये सर आ रही है। ओके, सो ये आप करते रहिएगा। मैं अभी इस क्वेश्चन को अभी यहाँ सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग बनाते रहिएगा और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करके बता भी सकते हैं कि सर मैंने इस तरह से डिजाइन किया, ठीक है। सो वीएलएसआई के हिसाब से इनको एक्टिव लो लॉजिक का बता दिया कि एक्टिव लो कई बार क्यों रखते हैं। ये सर वो मैंने बता दिया था। ओके, गुड। सो अगेन वी हैव सीन द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। We can conclude just like this in a short way, that we have seen the address buses inside the microprocessor, what is the purpose of the address buses, data buses, and the control bus. I will tell you some more thing about this instruction register and instruction decoder. And we have also seen the general purpose register, special purpose register. The special purpose registers are actually, there are some registers that are actually reserved for some specific function, and these functions are actually internal to the microprocessor, which the user cannot use these registers. So we can think about that कि मान लो अपन ने देखा कि यहाँ पर जब हम जनरल पर्पस रजिस्टर की बात कर रहे थे तो मेरे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर थे, वो थे इस तरह से B C D E H L। मतलब यूजर इसको यूज कर सकता है, जो भी प्रोग्रामर है वो इनको यूज कर सकता है थ्रू द इंस्ट्रक्शन, बट दिस स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर एक्चुअली यूज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर एंड दिस इज नॉट यूज्ड बाय द programmer. Okay, so this name of these registers are normally called as a W and Z. I will write down the purpose of this instruction is that only the microprocessor will use, no user access. So they are called W and Z, and the size of this W is 8-bit and Z is also 8-bit. So important thing is that they are designed for some special operation, just like whenever you are calling any stack or subroutine, then they will be used, or some instruction normally used to store some data. And this वो ऑपरेशन ऐसा होता है कि वो आपको पता भी नहीं चलता है कि वो W और Z यूज भी हो गए और आप सोचते रहते हो कि वो क्या हो गया अंदर, ठीक है। तो मैं एक ऑपरेशन आपको ऐसा बताऊंगा कि वो W और Z यूज करना आपको आ जाएगा। मतलब आप तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है user cannot use this W and Z. User can only use this B, C, D, E, H, L.
I'm again writing the size of each and everything. Okay, we have seen the ALU, and this ALU is also 8-bit. Okay, and this temporary register, I will tell you the purpose of temporary register. Sometimes this special purpose register and temporary register are actually the same thing, so don't confuse on here. Temporary register, W and Z are called as a temporary register also, and they are also called as a special purpose register also. सर स्पेशल पर्पस में दो नाम और बता दीजिए इनको, एसपी एंड पीसी. Yeah, SP and PC. Okay, so SP, as for the sir told that SP and PC. So I'm coming. What is SP and PC? You please write down the name on here. It's called SP. That is called आप बाद में ले सकते हैं उसको, पर stack pointer. ये भी शामिल Stack है. pointer. And PC is called program count. Okay, the purpose of this stack pointer is that it will point to the stack location. अब ये stack क्या होता है, फिर उसकी location क्या होता है, we will discuss in the stack. And this program counter, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब भी आपको एड्रेस बसेस के ऊपर कोई भी सीक्वेंसेस अगर भेजनी है, मतलब डाटा एक बार आपने अगर एड्रेस बसेस को इनिशियलाइज करना है, सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस, उसके लिए पहले आपको प्रोग्राम काउंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. प्रोग्राम काउंटर पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद में आप जो है वो एड्रेस बसेस के ऊपर कोई कंटेंट लोड कर पाएंगे. तो वन बाय वन अपन ये सब चीजें देखेंगे. नाउ वी हैव सीन इन दिस आर्किटेक्चर, ये हमारा इतना इतना जो पोर्शन है, अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भूल जाइए. तो हमने ये देख लिया है कि ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है. स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को. एक्यूमुलेटर वी हैव सीन कि जब भी हम कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो एक्यूमुलेटर के अंदर होता है, एंड फाइनली उसका जो रिजल्ट होता है वो भी एक्यूमुलेटर के अंदर होता है, और फाइनली जो आपका रजिस्टर ए है वो उसके साथ अटैच रहता है. तो अपन यूजर को जब भी वो कंटेंट आपको एक्सेस करना होता है तो वो रजिस्टर ए के थ्रू करता है. सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो क्या ऑपरेशन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन चेंज हो रही है. एक्यूमुलेटर में जो भी ऑपरेशन हो रहा हो उसका स्टेटस अगर आपको चेक करना है कि अभी ऑपरेशन हुआ उसके बाद में क्या चीज चेंजेस हुई है, तो देर आर स्पेशली 5 flag position are actually defined into the flag register. The size of flag register is of 8 bit. So we have seen sign, 0, auxiliary carry, parity, and the carry flag. So these are the 5 flags that is available inside the microprocessor. Okay, and apart from this, we are having the total 8-bit internal data buses. So we have seen that the data bus, the size of the data bus is of 8-bit. So we have seen 8-bit data bus is there, and similarly this 16-bit address bus is there. ओके, अभी ये फिगर जब तक हमारा आर्किटेक्चर चलेगा, ये फिगर बार बार आपको आएगा, क्योंकि मैं वन बाय वन एक एक यूनिट को पकड़ रहा हूँ और उसके बाद हर एक यूनिट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, तो अपन ने यहाँ देखा कि फॉर एग्जांपल जब हम एड्रेसेस की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो भी हमारे पास एड्रेस था, तो साइज ऑफ एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So the size of address is of 16 bit. So this address will be divided into the 2 parts. First one is MSB and another one is LSB. So we have seen that अगर ये अभी मैंने एक एग्जांपल से बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 3005 एड्रेस है, तो ये 3005 एड्रेस कैसे ट्रेवल करेगा, तो इसका MSB जो है वो आपका A8 to A15 के ऊपर ट्रेवल करेगा. आप इसकी साइज देखो. सबसे पहले MSB की जो साइज है वो कितनी है, the size of MSB is 8 bit. Okay, and size of LSB is also 8 bit. The total size will be become 16 bit. So how this 16 bit, 8 plus 8 किसकी साइज, MSB की, और 8 किसकी साइज है, LSB की. So now एड्रेस बस की जो मेमोरी है वो 2 की पावर 16 हो जाएगी. हाँ, 2 to the power 16 हो जाएगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने यहाँ पे पूछा है. So I will tell you this answer of this question is that he has asked the question is that I told you the number of address lines are 16. Okay, so if I write down into the 2 to the power, so this will become 2 to the power 16. So this is 65536 something. If I write down this one, if I divided this one with the help of 1024,
or we can write down, sorry, not divide, we will multiply it just like that, 64 into 1024. So this 1024, this 1024 byte is equivalent to 1 kilobyte, 1 kilobyte. So I can write down the total amount of memory is 64 kilobyte. So this 8085 microprocessor can access memory of total size, that is 64 किलोबाइट। तो मतलब अगर आप एड्रेसेस की अगर बात कर रहे हैं तो एड्रेसेस को अगर अपन कहें तो इतने एड्रेसेस ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि इसकी साइज लिमिटेड है। इसकी साइज अगर मैंने कहा कि अगर ये 16 है, अगर मैं मान लो इससे 18 कर दूं, 2 टू द पावर 18 कर दूं, तो मेरे एड्रेस जो रिकॉग्नाइज करने हैं वो मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि 2 टू द पावर 16 मतलब इतने एड्रेस से रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो उसके बेसिस पर आप कितनी अमाउंट, मतलब कितनी लेंथ की मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 64 किलोबाइट। सो अगर आपके पास 2 टू द पावर n अगर एड्रेस लाइन है तो वो आपको शो करती वेयर n इज कॉल्ड एड्रेस बसेस, means you can recognize 2 to the power n addresses. It is clear? Yes? Okay. So we have seen that, I will tell you one more important criteria about that one, is that अभी तक अपन ने जो भी देखा वो क्या देखा कि आपको अभी मैंने सिर्फ प्लेन लाइन बताई है। इसके लिए मैं फिर से आता हूँ, एक और स्लाइड आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं। That we have seen the address buses. So they are just like A15 to A0. So total 16. But again we have to call the concept of this one is that 8085 microprocessor is having 40 pin DIP package, means हमेशा इसके अंदर पिन की कुछ न कुछ कमी है। तो मतलब मैं क्या करना है कि मेरे को जो है वो पिन को एक पिन के ऊपर डबल डबल फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे कई बातें। ओके, सो वी कैन से व्हाट द इंटेल हैज डन, इंटेल हैज डिवाइडेड दिस 18 into the two category. They have divided into the 8 and 8. So 8 they have called MHB and LHB. So what they have done, they have leave this line A15 to A8 as a plain, means there is a no inbuilt functionality और ये किसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया हुआ है, तो इनको उसने सिर्फ प्लेन ही रखा A15 टू A8 को। लेकिन ये जो लाइन थी A0 टू A7, तो अपन यहाँ देखते हैं कि मेरे पास अभी जो लाइन बची इसका क्या, इसने क्या किया, इसके ऊपर मल्टीप्लेक्स कर दिया। मतलब किसके ऊपर मल्टीप्लेक्स कर दिया, एक और जो हमारी बसेस हैं और वो बसेस है हमारी डाटा बस। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूं और मैं उनको कंबाइंडली अगर कॉल करूं AD7 टू AD0, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज ए मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डाटा बस। क्योंकि क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ पिंस बचानी है। तो मैंने क्या किया कि डाटा बस भी इसके ऊपर मल्टीप्लेक्स कर दी। तो मल्टीप्लेक्स कर दी मतलब एक इंस्टेंट पे जब मैं कहूंगा तो शुरू के इंस्टेंट, मतलब अगर मेरे पास ये लाइन है AD7 टू AD0, तो अब मेरी जो फाइनली जो लाइंस हो गई वो क्या हो गई आपके पास, ये हो गई A15 टू A8। अगर फिजिकली अगर मैं देखता हूं तो फिजिकली ये मेरे पास, इसको कहते हैं अपन हायर ऑर्डर एड्रेस बस। दे आर कॉल्ड एज ए हायर ऑर्डर एड्रेस बस एंड दे आर कॉल्ड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस प्लस डाटा बस, क्योंकि इसके ऊपर दोनों फंक्शनलिटी है। अब ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटेल ने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ही लाइन के ऊपर दो सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर दिया। तो जब आप कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हो तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड डीमल्टीप्लेक्स दैट वन।
ओके, तो सम डीमल्टीप्लेक्सिंग लॉजिक, वो डीमल्टीप्लेक्सिंग लॉजिक क्या करेगा कि आपकी कंपनी ने आपको बना के जो चिप दी हुई है उसने लाइंस को यहाँ डबल फंक्शनलिटी कर दी है, मतलब एक ही लाइन को डबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसको रियली में अगर मुझे को यूज करना है तो कंडीशन यह कहती है कि इस लाइन को आपको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस वन फॉर द। सर जैसे हम लोग ब्रेडबोर्ड में यूज करते हैं 8085 को, तो सर हाँ हम जो भी उसके पिन रहते हैं तो हम लोग तो मतलब जैसे जैसे उसके थ्री एक ही पिन के थ्री कनेक्शन सेम कनेक्शन उसमें तो यूज कर लेते हैं ना हम लोग सर। हाँ कर सकते हैं ना, मतलब अगर जैसे ये तो अभी मैंने अभी बताया है, हो सकता है आगे वाले कुछ 86 और 85 का मैं बताऊंगा कि कई बार मल्टीपल फंक्शन डिफाइन किए हुए रहते हैं। तो ये यूजर का लॉजिक क्या उसके ऊपर सप्लाई कर रहा है, यूजर ने कैसी इंटरफेसिंग डिजाइन बनाई है, वो उसको एक्सेस करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दैट फॉर यूज यू शुड डीमल्टीप्लेक्स। Okay, so I will tell you the logic for that one, how we can use that 80 to 87. So please read here. I have just discussed in this slide that these lines are called as a higher order address bus A15 to A8, and they are called as a 80 to 87 are called as a time division multiplex. They are division. We can say how they are called as a time division multiplex. So it's think that the time division line or in the format of the bus I will show in this manner. टाइम डिवीजन। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक इंजन वाला एग्जांपल आपको बताया, ये आ रहा है यहाँ पर। तो टाइम डिवीजन का मतलब क्या होता है? टाइम डिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं T1 सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, T1 सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ और T2 सेकंड तक जा रहा है, तो इनिशियल ये जो बस मेरे पास में है AD0 to AD7, तो इनिशियली वो कौन सा पोर्शन आपको शो करेगी, मतलब उसके ऊपर कोई अगर डाटा एड्रेस है तो वो एड्रेस का LSB पोर्शन आपको शो करना है। एड्रेस LSB मतलब ये जो बसेस हैं ये बसेस आपकी A0 to A7। जैसे ही आपका थोड़ा टाइम निकला T3 से T4, वो लाइन के ऊपर अब एड्रेस शो नहीं करेगा, आपका डाटा शो करेगा। ओके, आई विल गिव विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, प्लीज कम हियर। आप कभी भी कोई रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए और आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसी ट्रेन है जो स्टेशन पे निकल, या आप ट्रेन आने वाली है और आप खड़े हुए हैं स्टेशन के ऊपर। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले उस ट्रेन का इंजन आता है, ठीक है, फिर क्या आते हैं? कोचेस। तो सिमिलरली जब ये AD0 to AD7 लाइन जो है जब फंक्शन करती है तो सबसे पहला जो पोर्शन ये शो दिखा करती है वो दैट इज कॉल्ड एज ए एड्रेस, है ना। जैसे मान लिया आपके सामने से इंजन आया और इंजन आके निकल गया, ठीक है, अब क्या आने लग गए आपके पास में? कोचेस। तो जस्ट लाइक दिस वन, सो दे आर कॉल्ड एज ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स बसेस। ओके, तो लाइक दैट अब यूजर को ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो इमीडिएटली ये एड्रेस मेरे को कहीं ना कहीं लोड करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड द लेचिंग ऑफ दिस एड्रेस, लेचिंग ऑफ LSB एड्रेस। तो ये एड्रेस मुझे कहीं ना कहीं लेच करना पड़ता है। सो दिस प्रोसेस इज नॉर्मली कॉल्ड demultiplexing of AD0 to AD7 line. So this AD0 to AD7 line you have to demultiplex. Why we have to demultiplex? Because we have to separate out this address bus and the data bus. So important point is that this address is very important for me. Okay, I will give the one more example. Suppose I written on now. Okay, this address is very important for me. तो अगर वो एड्रेस अगर लॉस्ट हो गया, क्योंकि ये तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स है ना बेटा, इसको मेरे को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा तो ये मेरे को इसी लाइन पे मेरे को डाटा शो करने लगेगा। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसको समझते हैं, है ना, अपन वो फिर से वो एग्जांपल ले लेते हैं। एक एड्रेस है मेरे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एड्रेस and I am writing this in hexadecimal, and the data is just like this. Okay, so how we can represent it? So line A15 to A8 will be show this
30H means it will show the MSB portion of address, MSB of address. But the problem is that physically ये तो सही है, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ऊपर आपने 300 लिख दिया है, बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, एक जीरो मिटा दीजिए। तो सर ये 300 ये मतलब वो है 300A है सर। 300AH पे जो है वो 8 बिट का एड्रेस नहीं आ पाएगा ना। एक मिनट सर, मैं तो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 255 के अलावा नहीं आ पाएगा, तो वो बाद में करेंगे। अच्छा, इसको अपन दूसरा कोई एड्रेस चेंज कर लेते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक 2509H, है ना, 2509H। तो यहाँ पर जो लोड होगा दैट इज 25 MSB of this one. Okay. अब what the problem on here? The problem is that the line AD7 to AD0 are time division multiplexes. Okay. So how? ये आ जाएगा उसमें, मतलब सर बोले ना कि मैक्सिमम 255 आता है। नहीं ठीक है आ जाएगा। मैं उसको अपर बाइट पे ही समझ रहा था, पर वो पूरा 16 बिट एड्रेस लिखा है सर में, आ जाएगा। I take my words. वो दोनों से आ जाएगा, वो दोनों से आ जाएगा। 3000A से भी आ जाएगा और 2509 से भी आ जाएगा। No, I thought that you are intending to write 30 and only for higher order address bus, not for. Oh, yeah, no problem, no problem. Sorry, okay, दोनों से आ जाएगा, है ना। अपन इसको मान के चलते हैं कि दोनों से आ जाएगा। अब ये बस फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो फॉर एग्जांपल ये मेरी अगर बसेस हैं, इफ दिस इज माय बसेस, तो इन दिस बसेस, बस को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज ग्रुप ऑफ द लाइन। अब ये इसके ऊपर ये डाटा कैसे रहता है? तो फॉर एग्जांपल ये एड्रेस अगर मेरे पास रहेगा तो 25H यहाँ पर रहेगा। इज इट क्लियर? आई होप दैट आप लोग भी इसको ड्रॉ कर रहे होंगे, क्योंकि पैरेलली अगर आप ड्रॉ करते रहे सीक्वेंस में तो आपको भी क्लियर होता जाएगा कि ये ऑपरेशन कैसे होगा। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन में ड्रॉ करूं तो दिस क्रॉस विल शो beginning of some operation, so it is called cross beginning of operation. Okay, so the problem we can here see that in the case of this line AD0 to AD7, है ना, सबसे पहले मेरे पास में क्या आएगा, इसका ये आपका ये पोर्शन जो शो करेगा, ये पहले एड्रेस शो करेगा, will show the address and this portion will show the data. अब आप मेरे को जरा इसका fill in the blanks आप मेरे को बताओ, क्लियर करो ये fill in the blanks में क्या होगा। चलिए बताइए कौन सा एड्रेस यहाँ पे आएगा और कौन सा डाटा यहाँ रहेगा। ये या मान लो इस पोजीशन पे मेरे को करना है और इस पोजीशन पे बताइए, आप मुझे बताइए। सर एड्रेस 09 आएगा, तो डेटा भी 09 ही है ना। तो एड्रेस जो यहाँ पे इसके पास आएगा वो आएगा 09, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, डाटा भी मेरे पास 09 है ना। अपन ने दोनों एक जैसा ले लिया तो कंफ्यूज मत होना, ये मेरे पास 09 है, सो आई एम राइटिंग हियर दिस 09 विल बी लोडेड हियर एंड दिस 09 विल बी लोडेड, so don't confuse. Okay, so now and this 25 here, this 25 clear. Now the problem is that अगर मैं ये कुछ मिनिमम टाइम पे रहेगा, मतलब ये मैंने कहा कि ये T1 से T2 तक है और ये T3 से मेरे पास T4 तक है, तभी इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स बोलेंगे अपन, क्योंकि ये टाइम में मल्टीप्लेक्स है, मतलब कुछ टाइम के लिए एड्रेस शो करेगा, कुछ टाइम के लिए डाटा शो करेगा। अब पूरे ऑपरेशन के लिए मेरे को ये है कि जब तक मेरा एक ये डाटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 2509H एड्रेस के ऊपर मेरा पे एक डाटा है 09, तो जब तक माइक्रो प्रोसेसर इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर लेता ये डाटा तो आपका सेफ है, 25 के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो आपका LSB जो एड्रेस है, LSB एड्रेस, ये अगर आपने स्टोर करके कहीं नहीं रखा तो फाइनली आपका वो एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक और एग्जांपल, वी विल टेक न्यू एग्जांपल, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्जांपल अभी थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, तो अपन इसको 3108H पे कोई डाटा ले लेते हैं BB,
अब आप मेरे को बताओ, तो अपन यहाँ पे देखें तो मेरा A15 टू A8 क्या रहेगा, 31 एड्रेस का। लेकिन जब मैं यहाँ पे कहूंगा तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड एग्जांपल, इफ आई ड्रा हियर, अकॉर्डिंग टू द सेकंड एग्जांपल, now please tell me what are the content here. Here सर 08 08, very good, and here BB BB, H करेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इस वाले एग्जांपल को अपन देखो कि अगर आपने ये डाटा स्टोर नहीं किया, इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग करके इसको स्टोर नहीं करवाया, तो क्या होगा फाइनली, जो ये एड्रेस है, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि जैसे आप एक रेल के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और प्लेटफॉर्म पे अगर आपने इंजन को नहीं पकड़ा और इसको स्टोर नहीं किया कहीं पर, तो आपके कोचेस आने लग जाएंगे। तो मे बी पॉसिबल दैट आपका जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस ऐसा हो जाएगा 31BB, अगर आपने नहीं पकड़ा तो, विदाउट लेचिंग। पॉसिबल है, लेच का मतलब होता है स्टोर करवाना। तो अगर आपने नहीं किया तो फाइनली आपका ऐसा हो जाएगा। जबकि अब ये क्या हो गया कि आपका एड्रेस ही गलत हो गया, यूजर ने तो 3108 दिया था, अब वो 31BB आ रहा है, तो ये तो हमारा होना ही नहीं चाहिए। दिस इज परफेक्टली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, we don't want this operation. Okay, so it is necessary that you should store, you should latch this one. So in this manner we can say that the line AD0 to AD7 is, first thing is that they are time division multiplexing. The initial of that line will be having the address of any 16-bit address or LSB of that 16-bit address, and in the later part it will be having some data. Okay, so please come here. I hope that this diagram is much more clear to you. Is that here I written that we should latch, we should store, we should latch or store the lower address bus, and this lower address bus we will do with the help of the one signal, and that signal is normally called as a address latch enable. अभी ये signals की अपन इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने signals start ही नहीं किए, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि सिग्नल्स क्या होते हैं और ALE क्या काम करते हैं। फॉर इंट्रोडक्टरी सेशन यू जस्ट नो दैट ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लेच इनेबल। So the basic purpose of this one is that it will try to latch the LSB content of your address into the some latch for that particular operation. Okay, अगर ये ALE वर्क नहीं करेगा तो आपका एड्रेस स्टोर नहीं होगा, और अगर एड्रेस स्टोर नहीं होगा तो फाइनली आप गलत एड्रेस पर जाते रहेंगे और आपका जो डिजायर्ड ऑपरेशन है वो कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगी। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, मैंने जो आपको बताया कि वो यहाँ पे बताया कि आपकी जो लाइन से वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप कभी भी जब भी आप कोई फिजिकली कोई भी माइक्रोप्रोसेसर देखेंगे, फॉर एग्जांपल, है ना, we have seen, I will tell you, yeah, come to this diagram. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Yes sir. Yeah, this is your 8085 microprocessor, and this shows the various type of the signals, each and every signal that जिसके लिए जो पिन डिजाइन की हुई है वो सभी सिग्नल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब इस डायग्राम को देखने से पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर 28 लिखा हुआ है और ये 21, मतलब ये इसकी पिन, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है उसका पिन। This will try to represent the pin of that microprocessor. So now ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब ये जो डायरेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। This shows the direction, means this A8 to A15 will be having the direction in the outward direction, means it will be always from microprocessor to the other device. So we can see that कि ये जो बसेस जो निकल रही है, मतलब इसमें कभी भी ऐसा रिवर्स नहीं जाएगा, मतलब जो आपका सिग्नल है वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब unidirectional. This is correct. Is the unidirectional, means the purpose is that the logic level that will be flow will be always from the microprocessor to other devices. Now we are coming to the next one, is multiplex address oblique data bus. अब एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इन जो लाइंस थी मेरी, जो A0 to A7 लाइन थी, इंटेल ने उसको उठा के D0 to D7 पे मल्टीप्लेक्स कर दिया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स कर दिया।
अब इसको बेचारे को उसी का कंधा लेके चलना पड़ रहा है। इसलिए अल्टीमेटली अगर मैं जो पहले यहाँ पे देखूं तो मेरी A0 to A7 यूनिडायरेक्शन होती है, हमेशा अपन ने देखा है कि वो यूनिडायरेक्शन होती है, लेकिन वो उसके साथ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो इसलिए ये जो लाइन से इसको कई बार अपन बायडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आई विल टेल यू द इन एक्चुअल कंडीशन माय लाइन A0 to A7 आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। इन्हें स्टार्टिंग जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि जो उसकी डायरेक्शन होती है आपकी A0 to A15 की वो हमेशा यूनिडायरेक्शन ही रहेगी, ठीक है। सो वी आर अगेन कमिंग टू दिस सर सर वो जो मल्टीप्लेक्स जो हमारी एड्रेस बसेस और डेटा बसेस जो है AD0 से AD7, तो सर हम इन्हें जब कनेक्ट करते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्किट लगाना पड़ता है या फंक्शन ऑटोमेटिकली माइक्रो प्रोसेसर? वेरी गुड क्वेश्चन। हमें उसमें लगाना पड़ेगा, हमें एक लेच यूज करना पड़ेगा और वो लेच आपको बाजार से एक आईसी यूज करनी पड़ेगी और उस आईसी का जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड IC 74LS373, है ना। आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट जब भी देखेंगे तो आपको लेयर में भी शायद मैंने बताया था कि बहुत सारी आईसी उसमें कनेक्टेड थी, इंटरफेसिंग लॉजिक जब अपन ने बताया था, तो उसमें एक IC 74LS373 जो कि लेच का काम करता है। तो हमें वो माइक्रो प्रोसेसर के बाहर उसको कनेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो डीमल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो पाएगी और वो लाइन सेपरेटली हम यूज नहीं कर सकते। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर, दिस फिगर इज क्लियर, एनी क्वेश्चन इन दिस फिगर? Okay, so again we are coming to the one more thing is that we are coming to the microprocessor signal category. अब ये सिग्नल होते क्या है? जब भी आप कोई भी चिप ले लें, आप 555 ले लें या IC 741 ले लें, हर एक जो चिप डिजाइन की हुई है उसमें हर एक पिन का कोई ना कोई पर्पस होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्पस वो किसके लिए बना हुआ, पर्पस क्या है, अल्टीमेटली उसके ऊपर कोई ना कोई सिग्नल फ्लो होता है ना। तो सिग्नल या तो इनवर्ट फ्लो होगा या आउटपुट फ्लो होगा। So according to this, the microprocessor signals are actually divided into 6 different categories, and this first category is called as a higher order address bus, which are called A15 to A8. Okay. Another one is called as a multiplex address oblique data bus, that is AD0 to AD7. ये दोनों चीजें अपन देख चुके हैं, लेकिन अपन इसको सिग्नल कैटेगरी में देख रहे हैं तो उसका नाम अपने को पता होना जरूरी है। So they are called as a higher order address bus, multiplex address oblique data bus. Third one is called as a control and status signal. So we will go through this one. कंट्रोल सिग्नल अपन ने देखा, तो कंट्रोल सिग्नल क्या ऑपरेशन करवाते हैं? कंट्रोल सिग्नल दो तरह के ऑपरेशन करवाते हैं, या तो वो रीड करवाएंगे या वो राइट करवाएंगे। तो ये अपने पास 4 अपन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एक असाइनमेंट मैंने आपको दे रखा है कि वो 4 सिग्नल जो जनरेट करना थे मेरे पास, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट के, वो 4 सिग्नल आपको यहाँ जनरेट करना है। एंड इट स्टेटस सिग्नल विल टेल कि इंटरनली माइक्रोप्रोसेसर के पास में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो स्टेटस सिग्नल्स मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये जो 4 अगर ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, तो अगर किसी बाहर वाली चीज को अगर पता करना है कि अभी कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, मेमोरी रीड चल रहा है, मेमोरी राइट चल रहा है, IO रीड चल रहा है या IO राइट चल रहा है, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो जिस दिन आपकी तबीयत खराब है और आपका मूड ऑफ है तो आप डेफिनेटली पढ़ाई नहीं करोगे। तो आपके पेरेंट्स आपसे यही कहेंगे कि आज लगता है इसकी कुछ तबीयत खराब है, तभी इसका मन नहीं लग रहा है। तो आपका वो स्टेटस उसने चेक कर लिया, आपके चेहरे का, आपका फेस का रिकॉग्नाइजेशन पेरेंट्स ने कर लिया कि आज इसका पढ़ने का मूड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेटस। ओके, तो सिमिलरली इफ any external peripheral want to check the what's operation going inside that microprocessor, that is called the status. Okay, so with the help of the few signals we can check the status of the microprocessor, and apart from that microprocessor is having the capability to communicate with the outside world in a serial manner. So serially you will know the data that in a single line if some data is propagating or flowing, that are called the signal communication, serial communication. So microprocessor can serially communicate with the outside devices. So this is outside device. Any device you can take, and there are some standard protocols are actually designed for that one, and some standard connectors also available into the market for the serial communication. तो जब हम serial communication पढ़ेंगे तब हम मैं बताऊंगा। तो अब इसमें ये आता है कि
microprocessor serially, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, microprocessor can serially communicate with the outside devices. So the meaning of this one is that either the signal will be coming, means they are going outside of the, from the microprocessor to the outside device, or they are coming to the microprocessor. So this is also possible. So in the both the direction the communication is possible. So some signals are actually some pins are actually designed to facilitate this serial communication. So this is called as a serial input. So if I am saying कि अगर डाटा मेरा बाहर जा रहा है तो मैं कहूँगा इसको serial output data SOD, और अगर कोई डाटा अगर मेरे पास में आ रहा है तो मैं इसको कहूँगा SID, that stands for serial input data, है ना। तो सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, मतलब पहले एक जाएगा फिर दूसरा डेटा आएगा? यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो मेरे पास में अगर आपके पास 2 वायर लाइन है तो एक वायर तो आपका ग्राउंड है ना, या अपन सिंगल लाइन पे ले लें। और अगर मैंने कहा कि मेरे को ये बीट पैटर्न सेंड करना है, तो बीट पैटर्न सेंड करना है मतलब 101011 फॉर्मेट में मुझे सेंड करना है। तो पहले क्या जाएगा, पहले मेरा 1 जाएगा, है ना, फिर मेरा 0 जाएगा, फिर 1 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, एंड देन 0, फिर 2 बार मेरा 1 आएगा, लाइक दिस। So in a single line, if this type of the signal will be flowing for a particular timely manner, so they are called as a time division signals, sorry, not time division, they are going with reference to some clock or some timing sequence, so they are called as a serial signal. So in this way, आपने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा होगा ना, जब अगर किसी लाइन के ऊपर कोई ऐसा सिग्नल फ्लो होता है तो अपन इसको सिग्नल सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब पैरेलल कम्युनिकेशन कोई यहाँ पूछ सकता है कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए जितनी बिट्स हैं उतनी लाइंस आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 मतलब 6 बिट डाटा है, तो एक के ऊपर मेरा 1 फ्लो होगा, एक के ऊपर मेरा 0 फ्लो होगा, एक के ऊपर 1 फ्लो होगा, फिर 0 फ्लो होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा। तो मतलब यहाँ पर जितने मेरे पास लाइंस हैं उतने सिग्नल मेरे पास फ्लो हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर अपन स्पीड वाइज देखें, इफ यू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, द स्पीड ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर्ड टू द सीरियल कम्युनिकेशन, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू, क्योंकि डिपेंडेंसी आपकी पैरेलल कम्युनिकेशन में किसके ऊपर आ रही है, वो पैरेलल कम्युनिकेशन में डिपेंडेंसी आ रही है, वो आ रही है आपकी नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर। तो आपको हर बार इतनी नंबर ऑफ लाइंस डिजाइन करनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड में पैरेलल कम्युनिकेशन को बहुत कम जगह रिकॉग्नाइजेशन मिला है। जो रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, भले आप यूएसबी की बात करें या किसी भी डिवाइस की बात करें, आपको जो रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है वो सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन का ही मिला हुआ है ना। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ जिसने क्वेश्चन पूछा था कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये पता चला है ना? है ना। तो अपन ये सिर्फ सिंगल लाइन की बात करेंगे, अब ये वायर की बात नहीं करेंगे, इसको कंबाइनली अपन वायर कहते हैं दोनों को। Actually, distance is a very important criteria. If you look from the top, then all signals sent and received are a form of communication. Globally जो है सब कुछ है। तो आप अगर बोले कि ऑन बोर्ड कम्युनिकेशन, एक सिंगल पीसीबी पे कम्युनिकेशन चल रहा है, ट्रांसफर ऑफ डेटा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स, जो भी बोले आप चल रहा है, तो जनरली इट विल बी पैरेलल। बट if the distance is relatively larger, where it is not feasible to lay out many multiple parallel conductors, then you have to use serial communication. There is no other option. तो एक बोर्ड से दूसरे पीसीबी पे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे थ्रू वायर्स, then you generally use one or other form of serial communication. वो सर ने बोला USB हो सकता है, वो UART से हो सकता है, USART से हो सकता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क का कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट देन इट विल बी सीरियल इफ डिस्टेंस इज लार्जर। लेकिन अगर खाली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, जो कि डिवाइस कैन बी आईसी ऑल्सो, एक आईसी से दूसरे आईसी में भेजना है कुछ इंफॉर्मेशन, और वो एक ही बोर्ड पे है, पास पास है, तो देन यू विल गो फॉर पैरेलल कम्युनिकेशन। थैंक यू। Okay, so last category of this signal is called as a power supply. So you know that ये अपने पास एक, या सर कम्युनिकेशन का कोई हाइब्रिड फॉर्म भी है क्या, मतलब सीरियल और पैरेलल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए जैसे सर ने अभी बताया कि एक आईसी आती है,
and that IC is called as a UART, or similarly another name is given to that IC is called as a UART. तो वो कन्वर्ट कर सकती है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्शन कर सकती है, पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन कर सकती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वो आईसी आपको इस नंबर में अवेलेबल होगी, या नेट पे आप देख भी सकते हैं। जिन्हें मैं क्वेश्चन पूछा उस आईसी का नंबर मैं कहता हूँ, दैट इज 8251, दैट इज कॉल्ड एज ए यूज़ार्ट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ये हाइब्रिड मोड आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन बेटा एक टाइम पर आपको एक ही तरह का कम्युनिकेशन डिसाइड करना होता है, वो डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ डिवाइस क्या है। तो दिस यूज़ार्ट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सिंक्रोनस asynchronous receiver and transmitter. So it contains the two type of the block, serial to parallel conversion as well as the parallel to serial conversion. Okay, so sometimes जब भी हम communication करते हैं तब ये UART उसमें हमको use करना पड़ेगा। The last category of that signal, the 8085 microprocessor is called as a power supply and frequency signal. Power supply is very important task. ओके आपको ये चीप है, आपने 555 भी यूज किया हुआ है, IC 741 ऑपम भी यूज किया हुआ है, तो आपने उसमें दोनों में देखा कि जब तक आप उसको पावर नहीं देंगे वो ऑन नहीं होता। तो पावर देने का मतलब ये नहीं होता है कि 230 वोल्ट और समथिंग लाइक दैट। यू नो दैट ऑल द ICs आर फैब्रिकेटेड विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक डिजाइन, लॉजिक फैमिली टेक्नोलॉजी। So it is actually decided by the Intel or any manufacturer. So the point on here is that जब हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्लस सिग्नल है ना, मतलब पॉजिटिव सिग्नल या कुछ AC सिग्नल। तो जब हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो मतलब हमको यहाँ पर कोई पॉजिटिव सिग्नल एज वेल एज द ग्राउंड की भी बात करनी पड़ेगी। सो 8085 माइक्रोप्रोसेसर नॉर्मली वर्क्स ऑन ए +5 वोल्ट, ओके, +5 वोल्ट, एंड अनदर सिग्नल दैट यू हैव टू गिव इज द ग्राउंड। जब तक ये दोनों सिग्नल नहीं देते तब तक वो पावर सप्लाई में जो आपकी आईसी है उस आईसी में जितने भी गेट है वो एक्चुएट नहीं होते, ठीक है। तो इसको एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, एंड दैट फिक्स वोल्टेज इज कॉल्ड एज ए +5 वोल्ट। ओके, मैं अभी आगे और बताऊंगा, इसमें एक और हिंट है, ये 8085 का नाम 8085 क्यों पड़ा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 5 जो है, क्योंकि ये ऐसे डिजाइन हुआ था, मतलब ये जब डिजाइन होने आया था तो इसके जो नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसे डिसाइड हुए थे कि पहले इसका पहले वाला माइक्रोप्रोसेसर था वो 8080, हाँ 8080। बाद में उन्होंने क्या करा कि इसमें थोड़ा पावर सप्लाई का इश्यू आ रहा था। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सप्लाई वी हैव टू यूज फॉर दिस वन, +5 वोल्ट, +12 वोल्ट एंड -12 वोल्ट, समथिंग इज दैट। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे को एक माइक्रोप्रोसेसर रन करना है जिसमें मेरे को 3 अलग अलग पावर सप्लाई यूज करना है, तो 3 अलग अलग पावर सप्लाई की बजाय अपन एक पावर सप्लाई यूज करें। तो उन्होंने एक नया माइक्रोप्रोसेसर बनाया, उसको नंबर दिया 8085, वेयर द 5 विल शो कि आप उसको +5 वोल्ट सिंगल पावर सप्लाई से चला रहे हैं। दैट्स व्हाई ये 5 का फिगर यहाँ पे है। ओके, सो दिस इज द +5 वोल्ट। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये लॉजिक आगे मत लगाना। हाँ, ये मतलब एक ही टाइम ये 8085 पे लगेगा, बाकी और किसी पे नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद जो उन्होंने माइक्रोप्रोसेसर बनाया था, दैट माइक्रोप्रोसेसर इज 8086, बट दिस डजंट मीन कि ये 6 वोल्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये लॉजिक जैसे सन ने बताया ये एक ही बार लगेगा, उसके बाद ये लगा नहीं है उसके बाद में, ठीक है, क्योंकि ये भी +5 वोल्ट पे चला, ये भी आपका वर्क करता है सिर्फ +5 वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। ये आपका 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, तो ये आपका 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है ना। 1-2 मिनट और लेके मैं आपकी क्लास एंड कर रहा हूँ, बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब ईच एंड एवरी ऑपरेशन दैट इज गोइंग इनसाइड टू द माइक्रोप्रोसेसर विल गो विद रेफरेंस टू सम क्लॉक। ओके, so 8085 microprocessor having no inbuilt clock generation circuit। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके पास कोई भी इनबिल्ट क्लॉक जनरेशन नहीं है, लेकिन अगर मेरे को इसमें जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो जब तक क्लॉक नहीं मिलती वो ऑपरेशन अपना काम करना स्टार्ट नहीं करते, तो इस केस में मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्सेज कनेक्ट करना पड़ेंगे। तो सम एक्सटर्नल सोर्स आई विल कनेक्ट फॉर द clock frequency. So this clock frequency on which the microprocessor normally works, the clock frequency, I will say operating frequency, I am writing FO
FO stands for operating frequency. So this FO is having the value of 3.02 megahertz. Okay, so one more line is that whenever you really want to actuate or you really want that कि मेरा ऑपरेशन मेरा माइक्रोप्रोसेसर है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑपरेशन करे या जो कंपनी ने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करे, तो हमेशा हमको तीन चीज उसमें कनेक्ट करना ही है. पहला है +5 वोल्ट की पावर सप्लाई जो कि एक स्पेसिफिक पिन है, उसके ऊपर जाके आप कनेक्ट करो, उसको ग्राउंड से भी कनेक्ट करो और ये आप उसको फ्रीक्वेंसी जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंड दैट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 3.02 okay. So here I am stopping my class. Tomorrow we will again discuss कि ये डिटेल में अपन और जाएंगे कि ये सब पिन क्या होता है और ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं. फ्रीक्वेंसी भी हमको ही प्रोवाइड करनी पड़ती है. फ्रीक्वेंसी भी आपको ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सर हम लोग तो खाली वीसीसी देते हैं ना, जैसे 5 वोल्ट की अगर नहीं, आपको यूज करना है. वीसीसी के अलावा भी आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो आपको उस दिन याद है मैंने लैब में एक चीज बताई थी, वो लैब में आपको बताया था कि आप जो है वो एक टैंक नुमा सर्किट बना हुआ था माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर. मैंने उससे कहा था कि क्रिस्टल है, तो वो क्रिस्टल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. जब तक वो क्रिस्टल कनेक्ट नहीं करेंगे वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं जाएगी, और वो अंदर नहीं जाएगी तो ऑपरेशन नहीं होगी. ठीक है, अपन सब चीजों में अभी सब मैं इंट्रोडक्टरी ले रहा हूँ. अभी जब मैं आगे आऊंगा तो आपको मैं सभी सर्किट भी बताऊंगा अंदर के, और बाहर के सर्किट अंदर के सर्किट से कैसे कंपेटिबल होते हैं, तो कई सारी हिंट. ओके, सो वी विल स्टॉप द क्लास हियर. थैंक यू सो मच.